أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ النساء فورتھ سورہ ان ترتیب. پہلی سورت فاتحہ مکی, دوسری سورت بقرہ مدنی, تیسری سورت آل عمران مدنی, اینڈ دس از فورتھ سورہ وچ از مدنی, یعنی تھرڈ سورہ مدنی ہے ترتیب کے لحاظ سے, اور ویسے قرآن کی ترتیب میں چوتھی سورت ہے. 174 آیات ہے, 176 آیات ہے. اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ صورت کا بہت بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے پچھلی صورت کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صورت النساء سمجھنے کے لیے, ایون اس کی سمری سمجھنے کے لیے بھی کیا چیز ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. آپ کوئی بھی صورت پڑھیں گے, ہم لوگ تو اب کتنی صورتوں تک پہنچ گئے ہیں, مطلب ہم فاتر تک ہم نے اپنی کلاس کا اینڈ کیا. کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس میں کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات میں نماز کا ذکر نہ ہو. ایسا ہے؟ نہیں ہے نا. ہر صورت کی, ہر پیغمبر کی, کوئی بھی پیغمبر آیا ہے اس دنیا میں, اللہ نے کہا ہے کہ باقی شریعت اس کی جس طرح سے بھی ہو, لیکن اس میں ایک چیز کامن تھی, نماز کامن تھی. اتنا امپورٹنٹ فرض ہے نماز, تو کیا اس کو ڈیٹیل میں قرآن پاک میں ہونا نہیں چاہیے تھا؟ یہ ڈیٹیل میں قرآن پاک میں نہیں ہے, نہیں بتایا گیا نماز کے لیے کیسے ہاتھ باندھو, کیسے کھڑے ہو جاؤ, کون سی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. نتھنگ ایکسپلینڈ. جو سب سے بڑا فرض, جو تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری امت تک جو کامن ہے تمام امتوں میں, وہ نماز ہے. لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں پورے قرآن میں نہیں ملتی. نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ سمجھے بغیر آپ سورۃ النساء کو نہیں سمجھ سکتے. سورۃ النساء میں سب سے زیادہ آرگیو کیا جاتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں سے بہتر ہیں تو وہ کیسے ہیں, درجہ بڑھا ہوا ہے تو کیسے ہے, دبا لیں عورتوں کے حقوق, دبا لیں, کمزور کے کھا جائیں, وہ شاید اس طرح سمجھتے ہیں. تو سورۃ النساء کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے رجوع کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنی خیر لأہلہ, اپنی بیویوں کے ساتھ جو بہترین ہے. کیونکہ تمہاری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, کنتم خیر امت, اب تم بہترین امت ہو. تم باہر اچھے کاموں کی تلقین کرو گے, کمزوروں کے حقوق ادا کرو گے, ان کو چھین کے دو گے, ظالم کے منہ میں ہاتھ ڈال کے تم نوالا چھین کے دو گے مظلوم کو, بھوکے کو. تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں انصاف قائم کرنا ہے. اپنے گھر کی کمزور بیٹی کو, بیوی کو, بہن کو, اس کو حقوق ادا کرنے ہیں. تم کیونکہ بہترین امت ہو, بہترین امت تب بنو گے خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. اگر بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو وہ بہترین امت کی رسپانسبلٹی بھی اٹھا لے گا. سورت بقرہ ایمان, سورت آل عمران اسلام, اور سورت نساء انصاف. جسٹس کیسے کرو گے؟ سورت نساء کی سمری کرانے سے پہلے سمجھ لیجئے جسٹس کیا ہے, انصاف ہوتا کیا ہے, اور سورت نساء کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سمجھے بغیر, میں نے آپ کو نماز کی مثال اس لیے دی کہ نماز جیسا امپورٹنٹ فرض ہمیں قرآن میں اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا طریقہ ہے. ایسے ہی جب خیر امت کے منصب پر اپوائنٹ ہونا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا ہونا ہوگا. مرد آ کر پوچھتے ہیں کہ بیوی کو مارا ہے, تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مار سکتے ہیں. وہ سورۃ نساء کو انٹرپریٹ کرتے ہی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. آپ بتائیں, آپ نے اتنی تو سیرت پڑھ رکھی ہوگی, جتنی بھی پڑھ رکھی ہے,
कि आपको मेन पॉइंट पता होंगे कि आपकी 11 बीवियां थीं, इतनों के साथ निकाह था और इतने बच्चे हुए, तो क्या कहीं मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा है किसी बीवी को? अल्लाह कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान का प्रैक्टिकल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम किसी दर्सगाह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आलिम फाजिल ना हो जाओ, आपकी ज़िंदगी को देखो वैसा कर लो, कामयाब हो जाओगे। ये बात सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं। कैसे कहते हैं? आयत नंबर 31, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। कहो, इंसानों से कहो कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा कर लो। मेरी इत्तबा करने से क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह। यहाँ तो तुम मर रहे हो ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत कर लो, वहाँ अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने पर क्या होगा? अल्लाह के महबूब बन जाओगे। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। तुमसे गलतियाँ तो होनी ही हैं, तुम अपनी जानों पर जुल्म तो करोगे ही, फिर अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने ज़िंदगी में कोशिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़िंदगी गुजारने की। वल्लाहु गफूरुर रहीम। वो माफ़ करने वाला मेहरबान है। तो सूरत निसा को नहीं समझा जा सकता जब तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ना समझें, सीरत को ना समझें। जैसे कि नमाज नहीं पढ़ी जा सकती जब तक कि हम आपके तरीके को फॉलो ना करें, क्योंकि नमाज के तरीका कुरान में मेंशन नहीं है। ऐसे ही औरतों के साथ क्या सलूक करना है, ये आप जितनी भी सूरतें पढ़ लें तब तक आप उससे सही नतीजा नहीं निकाल सकते जब तक आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं देख लेते। और आपने फरमाया मैं तुम में से अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा हूँ। अगर तुम अच्छा रहना चाहते हो, अगर तुम खैर उम्मत बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी बीवियों के साथ अच्छा होना पड़ेगा, और अच्छा होने के लिए वैसा होना पड़ेगा जैसे मैं हूँ अपनी बीवियों के साथ। तो दिस इज़ द की ऑफ टू अंडरस्टैंड सूरत निसा। सूरत निसा इस चाबी को ताला लगाए बगैर खुलेगी नहीं आप पर। आप सारी ज़िंदगी सूरत निसा पढ़ते रहें, आप इसी हकूक़ की जंग पे रहेंगे कि रिलेशनशिप में कौन बेटर है, जब तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नहीं देख लेते। तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी थी जो सूरत निसा पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अच्छा, ये देखें सूरत आल इमरान में हुआ क्या है। मोमिनीन को शिकस्त क्यों हुई है? हालांकि सहाबा तो वहाँ से उतरे थे माल गनीमत जमा करने के लिए। माल गनीमत तो तब जमा करते हैं जब फतह हो जाती है। गज़वा उहद में मुसलमानों को फतह हो गई थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 50 लोग वहाँ दरे पे तैनात किए थे, क्या कहा था? अगर देखो बार बार कहा था नीचे ना उतरना। अगर देखो कि हमें शिकस्त हो गई है, हम मारे गए हैं और चील कव्वे हमारा गोश्त खा रहे हैं, ये कितनी डिटेल में समझाया, फिर भी नीचे ना उतरना। लेकिन जब वो नीचे उतरे तो फिर क्या हुआ? वो जो यकीनी फतह थी शिकस्त में बदली। कोई घर मदीने का ऐसा नहीं था जहाँ शहीद की बॉडी ना गई हो। ऑलमोस्ट 300 की आबादी में से अगर 70 लोग शहीद हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट यही बनता है तनासुब। सूरत आल इमरान सबक देती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानोगे तो शिकस्त हो जाएगी। तो सूरत निसा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगी? शिकस्त हो जाएगी। हमारी फैमिलीज ब्रेक हो जाएंगी। जब ख़ानदान ही मजबूत नहीं होगा तो आपका मुआशरा क्या मजबूत होगा? जहाँ हकूक़ में बैलेंस ही नहीं होगा, ताकतवर दबा रहा होगा, वहाँ पर आपका मुआशरा क्या तरक्की होगा? मैं मिसाल देती होती हूँ और मुझे कोई आर नहीं है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि अल्लाह नहीं शर्माता, मक्खी या मच्छर की मिसाल भी दे दे। मैं आपको मिसाल देती हूँ बिल क्लिंटन की। बिल क्लिंटन वॉज अ फॉर्मर US प्रेसिडेंट, लेकिन उसका एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर था मोनिका लेविंस्की के साथ, जिसकी बुनियाद पर बिल क्लिंटन को इस्तीफ़ा देना पड़ा। क्योंकि हम नहीं समझते, लेकिन गोरा समझता है कि जो बीवी को धोखा दे सकता है, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है, वो हकदार नहीं है कि वो दुनिया की इमामत कर सके। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये मिसाल
किसी मुसलमान में नहीं नज़र आई। मुझे मिली भी है तो US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, आई डोंट नो कि बाय रिलीजन वो यहूदी था कि ईसाई था, मुझे नहीं पता कि पूरे अमरीकियों का मज़हब क्या है, लेकिन मुझे पता है कि अमरीकियों में इतना इंसाफ ज़रूर है कि जो अपनी बीवी को चीट कर रहा है, जो चीटर है घर के साथ, बीवी के साथ, कमज़ोर के साथ, वो हक नहीं रखता कि आपको लीड करे। अल्लाह सूरत निसा में सिर्फ यही कहना चाह रहा है। हम बहस में पड़ गए हैं, 3 शादियां, 2 शादियां, 4 शादियां, वरासत के हक, वरासत कैसे खा लें, हमें पता ही नहीं चल रहा मैसेज अल्लाह क्या दे रहा है। तो सूरत निसा को पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? पहली बात तो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा देखना पड़ेगा। मेरे नबी ने कहा था तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। अफसोस ये किसी मुसलमान मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं था। अमरीकियों ने समझा कि बिल क्लिंटन अगर बीवी के साथ अच्छा नहीं है तो वो खैर नहीं है, उसमें वो नहीं बैठेगा हमारी कुर्सी पर, लीड नहीं कर सकता। मेरे पास आपके क्वेश्चन का आंसर है। हमारे शौहर नहीं समझते, कोई बात नहीं, हम माएँ हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पास तो नर्सरी है, हमने फसल लगानी है, अपने बच्चों को अच्छा शौहर बना देंगे। हम वो बना देंगे जैसे अल्लाह सूरत निसा में चाहता है, जैसे अल्लाह सूरत आल इमरान में चाहता है, जिनकी तारीफ़ें करता है अल्लाह, जिनको गारंटीज देता है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए तमाम जहान के लोगों। सूरत आल इमरान ख़त्म हो रही है एक आयत पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र करना, साबित कदम रहना, तूफ़ान आए, आंधी आए, तुम्हारे बच्चे काट दिए जाएं, तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने रेप कर दिया जाए, तुमने अल्लाह के रास्ते पे चलते जाना है, तुम्हारे घरों से निकाल दिया जाए, वो साबिर। और सब्र करने में एक दूसरे का साथ देना, कोई गिरा हुआ है उसका हाथ थामना, साबिर का ये मतलब होता है। वह राबितु, और राब्ते में रहना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह का खौफ तुम्हें इन सारी तकलीफ़ों से निजात दे देगा। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, क्योंकि तुम कामयाबी के लिए सफ़र कर रहे हो, क्योंकि तुम जन्नत के लिए सफ़र कर रहे हो, अल्लाह की रज़ा के लिए सफ़र कर रहे हो। तो इवेंचुअली तुम्हारा गोल फलाह है। तो फलाह का गोल कैसे पाओगे? 4 चीज़ों से, सब्र, दूसरों की हेल्प, राब्ता, आपस में ताल्लुकात अच्छे, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का डर। और सूरत निसा शुरू हो रही है, या अय्युहन्नासुत्तकू। मोमिनीन से बात स्विच करके अल्लाह ताला पूरे जहान के लोगों को कह रहा है, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। क्योंकि हम खौफ पर बात कर रहे हैं, तो खौफ अल्लाह का होगा तो आपस के ताल्लुकात में राब्ता ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। सूरत निसा पूरी रिलेशनशिप गोल है। पूरी सूरत एक लफ्ज़ में अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, रिलेशनशिप गोल है कि आपके रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, कैसे बेहतरीन हो सकते हैं। बतौर हस्बैंड वाइफ स्ट्रांग होंगे, फिर उससे वो ख़ानदान एक कॉलोनी में मिसाल बनेगा, फिर वो कॉलोनी एक शहर में मिसाल बनेगी, वो शहर एक मुल्क में मिसाल बनेगा, और वो मुल्क पूरी दुनिया में मिसाल बनेगा। और मुसलमान को ऐसी उम्मत होना है जो हर किसी के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि आप तो लीडरशिप आपको अपॉइंट हो गई है। तो लीडर को सबसे पहले क्या करना है? अपने घर में इंसाफ करना है, अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात बेटर बनाने हैं। या अय्युहन्नासुत्तकू, तमाम दुनिया के इंसानों, तकवा, अल्लाह का खौफ ही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ठीक रखेगा। उस रब से डरो, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। सारी रेसिज्म ख़त्म, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुली की बात तो दूर की रह गई। कोई गोरा, कोई काला, कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई आग को पूजने वाला, कोई भी आपसे बदतर नहीं है, आप किसी से भी बेहतर नहीं है। आप सब एज ए ह्यूमन अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। ये पहला कनेक्शन है जो अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं। वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसने तुम्हारे दरमियान जोड़े पैदा किए। वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और उन जोड़ों से बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें पैदा कर दी। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी, और डरो अल्लाह से, तसाअलून बिहिल अरहाम, जिसके बारे में तुम वोम के कनेक्शन की बात करते हो। अरहाम,
आज आराम का मतलब समझिए, हम रहम कहते हैं, अल्लाह से रहमत मांगते हैं, तो पहली रहमत जो अल्लाह ने अता की है वो माँ का पेट है, माँ की वो जिसे आप वोम को क्या कहते हैं उर्दू में, बच्चेदानी, यूट्रस, हाँ, वो है जो अल्लाह ताला कह रहा है। रहम वर्ड इसी से है, इसी से अल्लाह रहम करता है, रहमान है, रहीम है, मेहरबान है। इसीलिए वो अपनी मिसाल भी देता है, मैं 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करता हूँ। तो रहम के रिश्तों का ख्याल रखो। वो औरत जो माँ है उसका एहतराम करो। वो आपकी बीवी नहीं रही लेकिन वो अल्लाह की बंदी भी रहेगी, वो आपके या किसी के भी बच्चों की माँ भी रहेगी। तो इस चीज़ का तुमने ख्याल करना है, इस चीज़ की इज्जत करनी है। जिस चीज़ को अल्लाह इज्जत दे रहा है उसको इज्जत देनी है। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम्हारे पीछे है, तुम्हारी गर्दन को उसने पुश से पकड़ रखा है। व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यब, और यतीम को उसके हक दो और उसके माल मत खाओ। बात तो हो रही थी तकवा की, बात तो हो रही थी जोड़े बनाने की, यतीम का माल कहाँ से आ गया? अच्छा, पहले जोड़े की बात हुई है तो रिलेशनशिप गोल के बारे में मैं सूरत रोम की आयत आपको सुना दूं एक। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है, आयत नंबर 31 सूरत रोम, अन खलक़कुम मिन तुराबिन, कि उसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, फिर तुम उसमें से पूरा इंसान बन जाते हो और फैल जाते हो। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है, और उसके साइन है, उसका मोजज़ा है, उसकी मेहरबानी है, तुम्हारे ऊपर फेवर है कि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, जिसने तुम्हारी ही जान में से तुम्हारा जोड़ा बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं तरफ से, पसली से ही अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह ने बताया कि औरत और मर्द एक दूसरे का हिस्सा हैं, यानी असल में एक हैं। अभी इस दुनिया में आजमाइश के लिए उसको 2 पार्ट्स में अल्लाह ने बना के दुनिया में भेज दिया है। हम अपने ऊपर तो कोई जुल्म नहीं करते। किसी को देखा है खुद को काटता फिर रहा हो, खुद को थप्पड़ मार रहा हो, लेकिन हम उस औरत को अपना हिस्सा नहीं समझ रहे होते। और सॉरी टू से, ख़ास तौर पर सासें तो समझने ही नहीं देती बेटों को। अज़वाजल लितस्कुनु, अच्छा जोड़ा बनाया क्यों है? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे के साथ सुकून हासिल करो। वजाला बैनकुम मवद्दा, और उसने रख दिया है तुम्हारे जोड़े के दरमियान, तुम्हारे साथ क्या रखा है? मोहब्बत रख दी है। तुम्हें ऑपोजिट जेंडर में मोहब्बत महसूस होगी, कशिश महसूस होगी, व रहमा, और रहमत महसूस होगी। ये अल्लाह कह रहा है मैंने बनाया है, क्योंकि तो मैंने ये तुम्हारे अंदर ख्वाहिश रखी है और मैंने ही तुम्हारे अंदर ये मोहब्बत रखी है। तो ये वर्ड कहीं फेमिलियर है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो पसंद की शादी, मोहब्बत की शादी कुछ और समझा जाता है। अल्लाह कह रहा है मैंने जोड़ा बनाया ही इसलिए है कि मोहब्बत करो तुम आपस में एक दूसरे से। अनफेमिलियर है, नाजायज़ ताल्लुक, हराम हलाल, अभी शादी होनी ख़त्म होती, एक दूसरे को सिर्फ पसंद किया जाता है तो माशरे की तरफ से मुखालफत खड़ी हो जाती है। अल्लाह कह रहा है मेरी निशानियां हैं, और निशानियां अल्लाह कुरान की आयतों को कहता है, और अल्लाह इस मोहब्बत को अपनी निशानी कह रहा है कि जो मैं एक औरत और मर्द के दिलों में पैदा करता हूँ। मोहब्बत के लिए वजीफे किए जाते हैं। जब मियाँ बीवी बन जाते हैं तो माएँ वजीफे बता रही होती हैं, तुम्हें खामन तुम्हें तवज्जो नहीं देता, ये वजीफा पढ़ो, बड़ी मोहब्बत करेगा। या रऊफ़ो या रहीम, अल्लाह के नाम है शायद, या लतीफ़ो, वो पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम इस तरह से मोहब्बत की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर क्या कहते हैं? रन मुरीद, वो हमें कबूल नहीं है, सॉरी टू से। तो बच्चे भी कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी अपने पापा की तरह रन मुरीद बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बच्चे भी बोलते हैं। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस वर्ड को मैं खैरुकुम मिन अहलिही को तर्जुमा कर दूं उर्दू में तो यही बनता है, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे ज्यादा, वही है जो उस्मा ने कहा, और मैं तुम में से सबसे ज्यादा हूं। अब मुझे बताएं कि ये टैबू और स्लैंग है जो हम बोलते फिर रहे हैं। हम कुरान को समझने के दावे करेंगे और सूरत निसा के में औरतों के हकूक पढ़ेंगे और मर्द अपने हकूक बयान करेंगे। उसमें हमें पहला बेसिक ही समझ नहीं आया, अपने नबी की ज़ात ही समझ में नहीं आ रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सारी सदके और कुर्बान उन पे।
वरहमा इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी यतफक्करून, इसमें निशानी है, इसको अप्रिशिएट करेंगे, मोहब्बत का साथ देंगे, मगर कौन लोग? जो गौर व फिक्र करने वाले हैं, जिन्हें फ़िक्र है कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, जिन्हें फ़िक्र है कि माशरे के पिसे हुए लोगों को इंसाफ मिल जाए, जिन्हें फ़िक्र है कमज़ोर तक भी रोटी पहुंच जाए। हर किसी के बस की बात नहीं है। व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू, सूरत निसा की आयत नंबर 3। और अगर तुम्हें खौफ हो अल्लाह तुक़सितू, कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। इंसाफ का वर्ड यूज़ किया अल्लाह ने, किस्त का, अदल का नहीं यूज़ किया। किस्त क्या होता है? किस्त में कुछ चीज़ें पार्ट्स में होती हैं, ऐसा ही है ना, तकसीम किया जाता है तो उसके कुछ हिस्से होते हैं, तो इंसाफ के हिस्से हैं। मुझे याद दिलाइएगा, मैंने आपको इंसाफ की डेफिनेशन भी बतानी थी। तुम्हें खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फ़न के हु माता वलकुम, तो अपनी पसंद की औरतों से शादी कर लो। अल्लाह कह रहा है मैंने जोड़े बनाए हैं, और सूरत निसा में कह रहा है रिलेशनशिप गोल्स के बारे में सूरत है, तुम्हें औरतों के साथ कैसा होना है। तो शादी, पहली बुनियाद उसकी क्या होगी? शादी होगी, मैरिज होगी। तो मैरिज का इंस्टीट्यूट जिस चीज़ पर बेस करेगा वो क्या है? पसंद है। अब मुझे बताएं कि हम पसंद को कितनी अहमियत देते हैं। तुम औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए, जिनको तुम पसंद आओ। और यतीम के हकूक, यतीम जब होता है तो वो क्या होता है? यतीम के हकूक क्या ये इनकी पहली 3 आयत में बयान किए जा रहे हैं, या औरतों के हकूक बयान किए जा रहे हैं? और अल्लाह बार बार कह रहा है अल्लाह से डर के इनके हकूक पूरे करना। इन दोनों में क्या चीज़ मुश्तरक है? यतीम का वालदा या वालिद दुनिया से चली जाती है, वो जो प्रोटेक्शन होती है, वो जो छाँव होती है उसके सर से वो छिन जाती है। औरत की जब शादी होती है तो वो अपना घर बार छोड़ती है, अपने पेरेंट्स छोड़ती है, वो जो छाँव जो वालिद होता है उसकी, या वालदा होती है, या बहन भाई होते हैं, जो उसका कंफर्ट एरा होता है, ओरा होता है, उसको छोड़ के आती है। कितना कनेक्शन है जब अल्लाह कहता है यतीम के हकूक़ की हिफाजत करो और औरतों के हकूक़ की हिफाजत करो। यतीम ने भी अपनी छत खो दी है, औरत ने भी अपना घर छोड़ दिया है आपके लिए। दोनों को अब आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अल्लाह कहता है यतीम के हकूक़ पूरे करने के लिए निकाह करो। ऐसे नहीं पूरे कर सकते तुम, ऑर्फन होम बना के पूरे नहीं कर सकते। जो यतीम हुआ है बच्चा, अभी सैलाब के दिनों में ना हम लोग काउंट कर रहे थे, तो 46 लाख बच्चे यतीम हैं पाकिस्तान में। तो 46 लाख ख़वातीन ही बेवा होंगी जो प्रोटेक्शन से महरूम हुई हैं, अपनी फैमिली से महरूम हुई हैं, खामन के सकून से। जो जोड़े अल्लाह ने सकून के लिए दुनिया में पैदा किए थे, वो उनके पास वो चीज़ नहीं है, ज़ौज नहीं है। देन क्या है? यतीम के हकूक़ तुम पूरे नहीं कर सकते ऑर्फन होम बना के। उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों में बेहतरीन घर वो है जहाँ कोई यतीम रहता है। हमने अपने घरों को बेहतरीन नहीं बनाया, यतीमों को निकाल दिया घरों से, उनके लिए अलहदा यतीम खाने बना दिए हैं, वहाँ जाके पलेंगे। जो बहुत नेक हो जाते हैं, जो बहुत चैरिटी करने वाले हम में से हो जाते हैं, तो वो यतीम खाने बनवा देते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? चैरिटी उस तरीके से करो जैसे मैं कह रहा हूँ, उनको मेन स्ट्रीम में लाओ, निकाह करो, उनकी माओं के साथ निकाह करो, फिर यतीम तुम्हारे घर में परवरिश पाएं, फिर अल्लाह को पता चले कि तुमने अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी भी दी है, तुमने अल्लाह के लिए कोई काम भी किया है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, पूरी सूरत आल इमरान में मेरा फेवरेट मैसेज है। तुम नेकी की बिर बेरे 2 लफ्ज़ है ना, बा तक भी नहीं पहुंच सकते, उसकी खुशबू ही नहीं पा सकते जब तक वो खर्च नहीं करोगे जो तुम्हें, जिससे मोहब्बत है। ख्वाहिश को कुर्बान नहीं करोगे, इसार नहीं करोगे, अपने बच्चों के साथ साथ वो जो आपका दोस्त वफात पा गया है उसके बच्चों का ख्याल नहीं करोगे, उसकी बीवी से निकाह करके उसे माशरे में बाइज़्ज़त मकाम नहीं दिलवाओगे। निकाह का मतलब ये है कि बग़ैर निकाह के जो रिलेशनशिप होता है चोरी छुपे का, उसमें मर्द की लीनियज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औरत की इज़्ज़त मुतासिर हो रही होती है, उस पर बातें हो रही होती हैं। उसकी लीनियज बरकरार रखने के लिए उसे माशरे में बबांगे दोहल यानी ऑनर के साथ मकाम दो, उसको इज़्ज़त दो, उसको बीवी का दर्जा दो।
اس لیے نہیں کیا گیا کہ پہلی شادی بھی کنواری سے کرو پھر دوسری بھی بڑھاپے میں بھی کنواری لڑکی عیاشی کے لیے شادی کرنی ہے. یہ سب کہتے ہوئے بھی میرا رب کیا فرماتا ہے؟ نکاح کرو. ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، 3 کرنے پڑیں، 4 کرنے پڑیں، 2 کرنے پڑیں. زیادہ لوگ جنگ میں گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. زیادہ لوگ پردیس میں گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. صحابہ پتہ کیا کیا کرتے تھے؟ پہلے ہسبینڈ سے پوچھا کرتے تھے میں تمہاری بیوی سے نکاح کرنے لگا ہوں تو اوکے اچھی عورت ہے کر لوں. ہو سکتا ہے ایسا آج کے معاشرے میں؟ ہاں پہلے سے افیئر تھا، چکر تھا. میں تمہاری بیوی سے نکاح کرنے لگا ہوں، یہ جملہ سوچیں. اور آگے سے وہ جو جس بندے سے وہ پہلے وہ میاں بیوی رہے، ایکس ہسبینڈ کیا کہتے تھے؟ میرے ساتھ ہمارے اچھے نہیں کیونکہ اللہ کی تقدیر ہے. بہت اچھی عورت ہے، میرے ساتھ اچھی نہیں رہی، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا گھر بہت اچھے سے بسے. ہم سے کوئی ہسبینڈ پرانا تو دور کی بات ہے، کوئی پوچھ لے کہ فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، کیسے ہیں لوگ؟ تمہیں نہیں پتا وہ کیسے ہیں، میں بتاتی ہوں یا میں بتاتا ہوں، آؤ تمہیں. میں نے بہت سے زندگیاں رلتی دیکھی ہیں. یہی ہماری جو سینس آف تجسس، کریوسٹی اور دوسرے کی حق تلفی ہے، دوسرے کے اوپر بہتان باندھنا ہے. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. دوسری شادی میں سب سے بڑی پرابلم یہی آتی ہے، پہلی کیوں ٹوٹی؟ وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو کرسڈ وومن ہے، اس نے پہلا گھر نہیں بسایا، یہ دوسرا کیا بسائے گی؟ یہ میرے ساتھ نہیں اچھی رہی، تمہارے ساتھ کیا اچھی رہے گی؟ کبھی دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں پہلا ہسبینڈ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہو بیوی کے؟ وہ اتنی اچھی تھی، وہ اتنی اچھی تھی، وہ اتنی اچھی تھی، پلیز تم مجھ سے شادی کر لو، تمہارا گھر بڑا اچھا بس جائے گا. یہ تو ہم طنزیہ اس چیز کو مذاق بنا سکتے ہیں، لیکن صحابہ یہ ایکچول میں کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ انہیں یہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا تھا. حضرت زید اور حضرت زینب کی نہیں بنی، ان کی علیحدگی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا اور حضرت زید کے تھرو ہی مانگا. ایکس ہسبینڈ جا رہا ہے رشتہ لے کر کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا. صحابہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اگر عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں مانی تو اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے. اگر زندگی ہی پوری آپ کی مخالفت میں گزار دیں گے تو سوچیں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا تو کیوں کیا، اور ہمیں ایسا کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. ہر انسان اپنی کیپیسٹی جانتا ہے. میں آپ کو جانوں یا نہ جانوں، آپ مجھے جانیں یا نہ جانیں، میں خود کو اندر سے بہتر جانتی ہوں. میں کتنی بائسڈ ہوں، میں کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں اپنے شوہر کو، نہیں میں شیئر کر سکتی ہوں، نہیں. ایسے ایک مرد جانتا ہے کہ وہ کسی ایک بیوی کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو جائے گا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کو پسند کر رہا ہوں، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے. تو اگر یہ خوف بھی ہو کہ تم ایک سے زیادہ محبت کرو گے، دوسری سے کم کرو گے، ایک کے حقوق دبا لو گے، تو مت کرنا. پاکستانی معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے؟ شادیاں کی جاتی ہیں، پہلوں سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے. پہلے بچے ایسے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں مثال ہے سرائکی میں، ماں مترائی تے پیو کسائی. دوسری شادی ہوئی نہیں اور پہلے بچوں کے لیے باپ کسائی بن جاتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچے میرے سوتیلے ہو گئے ہیں، میرے سوتیلے ہو گئے ہیں. میں وہ دوسری بیوی کے یا پہلی بیوی کے مطلب آئی ڈونٹ نو، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پہلی ہیں، دوسری ہیں، تیسری ہیں، چوتھی ہیں، ہر طرح سے ناانصافی کی جاتی ہے. جو ریلیشن شروع کرنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرنا. سورۃ آل عمران کے سب سے آخر میں ساری باتیں کرنے کے بعد، ساری کمنٹری کرنے کے بعد غزوہ احد پر اللہ آخر میں کہہ رہا ہے تقویٰ کرنا. اس صورت کو جب آپس کے ریلیشن ہو تو شروع بھی کس چیز سے کر رہا ہے؟ مجھ سے ڈر کے ریلیشن بنانا. کسی کے حقوق کھانا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، تو یہ خیال کرنا میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری گردن پکڑی ہوئی ہے، میرے ہاتھ میں ہے. تیمم کے احکامات ہیں اس صورت میں. اچھا، صورت نساء کے 2 مین پورشن ہیں. صورت نساء کے جو 2 مین پورشن ہیں تو اس میں ایک تو ہے سوشل جسٹس، انصاف. اور جسٹس 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ دونوں فراقین کو بائسڈ ہوئے بغیر سنیں. مطلب کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو آپ، کیونکہ معاملہ 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک اکیلے کا معاملہ ہو نہیں سکتا. آپ کا جھگڑا دیوار کے ساتھ تو نہیں ہوگا، کسی انسان کے ساتھ ہوگا.
तो जस्टिस का मतलब होता है दोनों को बराबर अहमियत दी जाए, वेदर वो औरत है या मर्द। जेंडर बायसनेस तो दूर की बात, कोई आलिम भी है, जब अल्लाह ने पैगंबर कह दिया ना, पैगंबरों में फ़र्क नहीं करना, तो उलमा और आम आदमी में इख्तलाफ तो कोई रह ही नहीं गया। चाहे एक की तुम्हें नमाजें नज़र आ रही हैं, आलिम नज़र आ रहा है, हाजी साहब नज़र आ रहे हैं, मस्जिद में आता जाता नज़र आ रहा है, और बीवी जो उसकी है वैसी उस लेवल का तुम्हारे लेवल के ईमान वाली नहीं भी नज़र आ रही, लेकिन तुमने बराबर बात सुननी है। दूसरी बात, वर्डिक्ट कायम करना होता है। आप कोई नतीजा कायम करेंगे, वो होता है इंसाफ का दूसरा लेवल। आपने जजमेंट पास करनी है, अब आपने जज कर लिया है कि कौन गलत है कौन सही है। तीसरी बात होती है उस नतीजे को अप्लाई करना, होता है कि नहीं? इंसाफ मुकम्मल नहीं होता। जज ने आपको अगर सज़ा सुना भी दी है, जज ने आपको आपके हकूक दिला भी दिए हैं, सपोज हस्बैंड वाइफ में अलहदगी हुई तो जज ने कह दिया है बच्चों को इतना खर्चा दो, लेकिन वो खर्चा जब तक माँ को मिल नहीं जाएगा इंसाफ पूरा नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ने किस्त कहा कि इंसाफ की सारी किस्तें मुकम्मल करना। तुम दुनिया में इसलिए भेजे गए हो, तब जाके अच्छे हस्बैंड बनोगे, तब जाके खैरा उम्मतिन बनोगे। जो तुम्हें ड्यूटी दी गई है वरना तुम पूरी नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताती हूँ जो इसका कनेक्शन है सूरत आल इमरान के साथ। हाँ, तकवा बुनियाद है आपस के ताल्लुकात की, ठीक है? ये मैसेज है। 174 आयात हैं और इसका रेवोल्यूशन का टाइम जो है वो है 3 हिजरी। गज़वा उहद के बाद जब यतीम हुए, माशरे में बेवाएँ हुई, तो उनके हकूक़ के लिए ये दूसरी शादियों के कानून अल्लाह ताला ने ये बयान किए। अच्छा, फिर क्या हुआ है? गज़वा बनु मुस्तलिक, अम्मा आयशा वाला जो वाक़या था, आप सबको पता होगा, सूरत नूर जिसकी बुनियाद पे नाजिल हुई है, तब तक ये सूरत नाजिल हो रही थी। आप ये देखें कि कुरान एक दिन में नाजिल नहीं हुआ, और कोई भी सूरत इकट्ठी, बहुत चंद सूरतें हैं जो इकट्ठी नाजिल हुई हैं। मतलब एक सिचुएशन आई है, उसके ऊपर आयतें नाजिल हुई हैं, वो बाकी आयतें कोई और सिचुएशन आती है 4-5 साल बाद उसमें नाजिल हो रही हैं। इस तरह से सूरतें कंप्लीट हुई हैं, ठीक है? वहाँ बताया गया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को तमाम जहान की औरतों पर चुना है, और यहाँ तमाम जहान की औरतों के साथ आप क्या सलूक करेंगे ये बताया गया। मेन टॉपिक है इसके हुस्न माशरत, कमज़ोरों के हकूक़। दूसरा है मुनाफ़िकत। जब आप चीटिंग करते हैं ना तो आप मुनाफिक हो जाते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि अल्लाह ने कहा है नमाज ना पढ़ी तो बख्शिश नहीं होगी, लेकिन आप भूल जाते हैं कि अगर बीवी के हक अदा नहीं किए। इस सूरत में हक महर की बात बहुत दफ़ा की गई है, इस सूरत में वरासत की बात बहुत दफ़ा की गई है, यतीम के हकूक़ बहुत दफ़ा कहे गए हैं। मियाँ बीवी में कौन सा फरीक कमज़ोर होता है? दोनों में से बीवी कमज़ोर होती है, क्योंकि औरत है। इस सूरत का नाम ही निसा है, औरत के हकूक़ पर बात की गई है। अलहदगी की सूरत में क्या करोगे तुम? जो ये सब नहीं कर रहा होता, अल्लाह उसे क्या कंसीडर करता है? क्या बाय पर्पस है, या अल्लाह ने खामखाई यहाँ पर इसी सूरत में मुनाफिकत का तज़किरा कर दिया? इस सूरत में मुनाफिकत पर सबसे ज़्यादा बात की गई है कुरान की किसी भी सूरत के मुकाबले में। तो अल्लाह ने बताया है कि जो चीटिंग करता है ना, घर के साथ शुरू करता है, तो फिर वो चीटर अच्छा लीडर नहीं बनता, उसको अल्लाह मुनाफिक कंसीडर करता है। जो कमज़ोर के हकूक़ साजिश करके, मकर करके, चाल चल के दबा लेता है, वो मुनाफिक होता है। वहाँ कहा गया है कि कमज़ोरों के लिए लड़ो, सूरत आल इमरान में। यहाँ बताया जा रहा है कि जो तुम्हारे माशरे का कमज़ोर है, जो तुम्हारे घर का कमज़ोर है, सबसे पहले उसे हकूक़ दो, क्योंकि कोई यहाँ तुम्हें नहीं देख रहा अल्लाह के सिवा। घर में, माशरे में तो लोग देख रहे होते हैं ना, बंदों में वाह वाह हो जाएगी। आप हो सकता है सरपंच हो, परे पंचायत लोगों के मसले हल करते हो। आप कैसे अपॉइंट हो सकते हैं जब आप खुद कमज़ोरों के हकूक़ दबा रहे हों? वहाँ राब्ता, सब्र, तकवा और साबित कदमी और दूसरों का हाथ पकड़ने की तलकीन की गई है। यहाँ डायरेक्ट आपके सब्र का मुस्तहिक बताया गया है। सबसे ज़्यादा कौन है? बीवी है। वो डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए गए हैं जो रंग, नस्ल, आप अकीदे की बुनियाद पर फ़र्क करते हैं इंसानों में। यहाँ कह कर के तमाम इंसानों से खिताब है, और तुम्हें अल्लाह ने एक जान से बनाया, ये करके अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, इस सूरत की एक बड़ी ज़बरदस्त आयत है 155, मैंने कहा था मैं ये ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। वहाँ आपने पढ़ी ना वो आयत कि अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैंने चुन लिया है आपको, ठीक है? यहाँ क्या कहा? वबे कुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा।
तब अल्लाहु अलैहिम बिकुफ्रिहिम, अल्लाह कहता है मैंने इनके दिलों पर मोहर लगा दी क्योंकि इन्होंने मरियम पर बहतान लगाया। सूरत निसा में एक बात में पूरा मैसेज समझा दिया गया। वहाँ तमाम जहान की औरतों में मरियम को चुना क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम जहान की मुखालफत बोल ली। यहाँ पर बताया गया है कि तुमने क्या किया, मरियम पर बहतान लगाया कि नाजायज़ बच्चा है। तो अगर आपकी मुखालफत की जाती है तो यकीन करें अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अगर इसको वाइस वर्सा करें तो ये बात यहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि अल्लाह बता रहा है कि कमज़ोर पर अगर बहतान भी लगा दोगे तो तुम्हारे दिलों पर मोहर लग सकती है, जैसे मरियम पर बहतान लगाने वालों के दिलों पर मोहर लगा दी गई। अच्छा, वहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को चुना गया। आयत 42 सूरत आल इमरान 155 यहाँ बताया गया कि मरियम अलैहिस्सलाम को डिज़र्विंग इज़्ज़त ना देने पर तुम्हारे दिलों पर मोहर लग सकती है। मरियम अलैहिस्सलाम इज़ द सिंबल ऑफ ऑल निसाउल आलमीन। आपने तमाम जहान की औरतों के साथ क्या सलूक करना है ये सिंबल करके बताया गया। अल्लाह ने अगर उन्हें चुना तो तुम अपने कमज़ोरों को क्यों नहीं चुनते हो। यहाँ बताया गया कि बेहतरीन लीडर कमज़ोर के हकूक़ की हिफाजत करेगा। वहाँ बताया गया कि कमज़ोर के लिए लड़ो। मैं आयत आपको सुना देती हूँ, उसके बाद मैं इसको सम अप करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है जो सूरत निसा में, अगर वो ना पढ़ी तो मुझे लगेगा कि मैंने समरी कराई ही नहीं। और फिर नादिया जो आपने कल क्वेश्चन किया था उसका आंसर करती हूँ मैं। कत्ल अमद की सज़ा क्या है, तयम्मुम के मसाइल हैं। इस सूरत में और भी बहुत से अहकामात हैं जो बताए गए हैं। वरासत की तकसीम कैसे होगी ये बताया गया है। आयत नंबर 75 सूरत उन्निसा, वमा लकुम ला तक़ातिलूना, तुम्हें क्या हो गया कि तुम किताल नहीं करते। किताल में चांसेस होते हैं मरने के, होते हैं कि नहीं होते। किताल से ज़्यादा कहीं चांसेस नहीं होते, आपकी जान भी जा सकती है। आपको पराए फड्डे से पढ़ने से मना किया जाता है कि कहीं आपकी जान ना चली जाए, आपके पेरेंट्स को फिक्र होती है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, तुम्हें क्या मौत पड़ गई है कि तुम लोगों से लड़ते नहीं हो, किताल नहीं करते हो। फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल, और कुछ कमज़ोर मर्द हैं। वन निसाए, और कुछ औरतें हैं जो कमज़ोर हैं। वल वालिदाने, और कुछ बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं। अल्लज़ीना, जो कहते हैं, यकूलूना, दुआ करते हैं, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अखरिजना, हमें निकाल इस तकलीफ़ से, इस मुश्किल से, मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिम, ऐसी बस्ती से, ऐसे घर से जहाँ के रहने वाले हम पर जुल्म करते हैं। अहलुहा, जहाँ के रहने वाले। वज अल्लना मिन लदुनका, और बना हमारे लिए किसी को अपना वली, किसी अपने वली को चुन हमारी मदद करने के लिए। वज अल्लना मिन लदुनका नसीरा, और बना हमारे लिए किसी को मददगार। आप अल्लाह के सिपाही बनना क्यों नहीं पसंद करते, जबकि अल्लाह ने कहा आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। पिछली सूरत में क्या कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी, लोगों के लिए भेजे गए हो। यहाँ अल्लाह ने कहा क्या हो गया है कि अमर बिल मारूफ नहीं करते हो। कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं जिनके हकूक़ दबाए जाते हैं, जिनको घरों से निकाला जाता है, जहाँ जंगें मुसल्लत की जाती हैं, जहाँ रोटी छीनी जाती है, उनके लिए लड़ते क्यों नहीं हो। ऐसा लड़ो कि मर जाओ या मार दो, क्योंकि इससे बिल्कुल पीछे वो आयत है कि जो अल्लाह के रास्ते में मर जाए तो फिर उसके अजर महफूज हैं।
इसी सूरत में वो आयत भी है कि जो अल्लाह के रास्ते में, सूरत आल इमरान में वो आयत भी है कि जो अल्लाह के रास्ते में मर जाए उसको तो आपने मुर्दा समझना ही नहीं है, हमेशा की ज़िंदगी चाहते हो ना। हम में से हर एक चाहते हैं, बर्थडे विश क्या करते हैं कि ऐसी हज़ारों साल की रह मनाओ। हालांकि हम सब जानते हैं कि हमें 100 साल से ज़्यादा तो उम्र कोई जितने पे जी जाए पा ही नहीं सकता। हमेशा की ज़िंदगी हमारी ख्वाहिश है। तो अल्लाह कहता है कमज़ोरों के हकूक़ दिलाने के लिए, किताल की बात है यहाँ, जो घर के कमज़ोर होते हैं उनके हकूक़ के लिए तो किताल भी नहीं करना पड़ता। अगर आप कोई देख रहे हैं किसी की हक तलफी हो रही है घरों में, बतौर बीवी, बतौर बेटी, बतौर बहू, बतौर बहन, बतौर नंद, तो फिर आप उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जबकि लोग दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें कोई अपना वली, अपना मददगार अता कर, तो आप और मैं, हम अल्लाह के वली और अल्लाह के मददगार होना चाहते हैं कि नहीं? सो दिस इज़ द की मैसेज ऑफ और की कनेक्शन ऑफ सूरतुल बकरा और सूरत आल इमरान एंड सूरत निसा। एक और कनेक्शन, वहाँ बताया गया कि अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, वरना नतीजा क्या होगा? ज़ख़म लगेगा, नाकामी हो जाएगी। यहाँ बताया गया खैरुकुम मिन अहलिही कि अगर यहाँ भी अल्लाह की अताअत नहीं करोगे तो तुम बदतरीन, तुम्हारे घरों में सलूक होने की वजह से घर टूटेंगे। घर टूटेंगे तो माशरा मजबूत नहीं होगा, माशरा मजबूत नहीं होगा तो किसी को भी उसके हकूक़ नहीं मिलेंगे। एक जंग शुरू हुई है, हमें नज़र आती है, पाकिस्तानी सड़कों पर फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, हमें गाड़ियाँ चलाते हुए फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर होती है। हम में से हर एक चाहता है दूसरे से हकूक़ छीन ले। So this is the whole summary of सूरत निसा एंड सूरत अल इमरान। और एक और बात, अल्लाह ने कहा अल खल्क़ु अयालिल्लाह, मेरे घर वाले कौन है? मेरी मखलूक है। तो आप मियाँ बीवी जब नहीं रहते तो वो तब भी अल्लाह की मखलूक रहता है और वो तब भी अल्लाह की मखलूक रहती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमु मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से मुसलमान महफूज रहे। अब आपके हाथ से तो वो बंदा या बंदी महफूज हो गई है, लेकिन आपकी ज़बान से क्या महफूज है? आप एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के बारे में कैसा बोलते हैं? हाँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।